Hello everyone, welcome to the online classes of Bluebells Public School. I am your math teacher Naveen Singh, and in this video I am going to discuss the same chapter, linear equation in two variable, particularly exercise 4.3 starting from question number 2, in which many of you are finding difficulties. So प्यारे बच्चों, let's see कि what is question number 2. You all will open your books to see the question number 2 from exercise 4.3. The question is, give the equations of two lines passing through 2, 14. सबसे पहले आपको क्या दिखाना है? You have to show what is 2, 14. If there is any address given in this form for the graph, you have to understand what? 2 is the value of x and 14 is the value of y. After that, think about the graph. कि graph कैसा दिखता है? Something like this. X-axis, y-axis, horizontal axis is x and vertical is y. So suppose कि there is any point. First, try to answer this question theoretically. There is a point. The address of point is given, that is 2, 14. And question says कि how many more such lines are there and why? And why? कि ये जो particular point है, इस point से आप कितनी सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? थिंक अबाउट दैट. मे बी एक लाइन ऐसे हो सकती है, ठीक है. जब भी मैं वर्ड लाइन बोलूं, लाइन मीन्स इट हैज बोथ द एंड टिल द इनफाइनाइट, और यू कैन से नॉट फिक्स्ड, सो यू हैव टू पुट द एरो. इस पे जो कुछ भी होगा सब में क्या होगा? एरो हमेशा होगा. जब तक कि कोई आप ट्रायंगल या कोई स्क्वायर या कोई डेफिनेट डायमेंशन का आप फिगर ड्रॉ ना करो, तब तक हमेशा आपको ये एरो लगाना है. सो क्वेश्चन आस्क्स यू कि हाउ मेनी सच लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट. सो दिस इज द लाइन. अगेन you can draw this line, it is going through the same point. Again you can draw this line. So now you should have your answer कि how many lines can be drawn from a definite point on a graph paper. Is that 1, 2 or infinite? So I think कि आपका आंसर मिल गया होगा. So we can draw infinite number of lines from a definite point on a graph paper. But what here the question says कि you have to give the equation, and equation for two lines means two equation. Okay. So let's start it. First you have to compare x with the y. You can see the value of y is 7 times the value of x. The value of y is 7 times the value of x. It means कि जो y है वो x का कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स है. ओके. आफ्टर दैट आपको जब इक्वेशन बनाना होता है तो आप क्या करते हो? आप किसी भी चीज को एक साइड करके 0 से कंपेयर करते हो. ये भी इक्वेशन है, बट इसको हम थोड़ा स्टैंडर्डाइज करें अगर, हम कैसे करेंगे? वी कैन राइट 7x, y को आप इधर ला के -y लिख सकते हो, इक्वल्स टू 0. सो दिस इज अ इक्वेशन. This is the equation that satisfy what? That satisfy the above value, x equals to 2 and y equals to 14. You can put and check, the result will be 0. So this is our first answer. We have to find another. So very simple way to find out another one is, think about the sum and think about the difference. There are another ways always, but I have to find just two. So I am taking 1, 2, 3 examples.
Think about the sum of x and y. If you add x and y, the sum should be equal to what? 2 plus 14, that will be equals to what? 16. So I can write कि sum of x plus y equals to what? 16. ठीक है, आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके 14 और 2 को देख सकते हो कि ऐड करने पे 16 आ रहा है. So this is our second answer. ओके, सपोज यहाँ पे आपको 2 बोला गया. अगर आपसे एक और मांग लेता कि सपोज कि क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड 3 इक्वेशंस, सो फॉर श्योर यू कैन फाइंड द थर्ड इक्वेशन. आपने यहाँ सम करके पता किया, आप डिफरेंस भी तो पता कर सकते हो. थिंक अबाउट व्हाट शुड बी द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई. अगर आप x और y के डिफरेंस की बात करें, x में से y को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y तो बड़ा है, x तो छोटा है, तो जो डिफरेंस होगा वो आएगा तो जरूर, लेकिन किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा. y नेगेटिव बिकॉज आप 2 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 तो आएगा, बट विथ माइनस साइन. सो दिस इज अनदर इक्वेशन. दिस इज अनदर इक्वेशन and you can standardize this equation by comparing RHS with 0. तो आपको ये 12 इधर लाना पड़ेगा. तो आप कैसे लिखेंगे? x minus y plus 12 equals to 0. ओके, x minus y क्या होता है? यहाँ पे -12 है, तो -12 plus 12 आपस में कैंसिल होकर 0 के कंपेयर होगा. सो यू कैन फाइंड सो मेनी इक्वेशंस. ओके, आप चाहो तो मैं आपको एक इक्वेशन और बता सकता हूं. आप कुछ भी लिखो, जैसे मैं कह रहा हूं x को आप 2x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. x को आप 3x लिख दो, यू कैन राइट इट. बट जब आप इक्वल के राइट में लिखेंगे, इक्वल के सामने जब आप वैल्यू लिखने जाएंगे तो थोड़ा सा सोचेंगे. क्या सोचेंगे? कि मैं यहाँ पे x को 2x कर रहा हूं, हाँ, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2 और 14, इसको एज्यूम करो. f की वैल्यू क्या गिवन है? 2, तो ऑल ओवर ये कितना हो गया? 4. और y की वैल्यू क्या गिवन है? 14, तो 14 और 4 दोनों मिलके क्या होगा? 18. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. अगेन इफ यू राइट 3x, इट्स ओके. x इज व्हाट? x इज 2. मैंने कहा ये आप कुछ भी लिख लो, y लिख लो, 3y लिख लो, 5y लिख लो, कुछ भी लिख लो, बट जब आप इक्वल के बाद जो वैल्यू लिखने जाएंगे तब आप एक ये जो है ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करके यहाँ पे आंसर देना चाहिए. तो मैं 3x अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 2 3 जा 6 y2 बिकॉज x इक्वल्स टू 2. सो 2 3 जा 6 और 6 प्लस 14 इक्वल्स टू व्हाट? 20. सो यू हैव टू राइट 20. So all these equations that are inside the rectangle here, here, here will satisfy your answer. They all are passing through the same point, and the point is 2, 14. 2, 14 means again x equals to 2 or y equals to 14. Let's take some more questions from the same exercise. हाँ, इसमें एक टैग लगा हुआ है कि why we can find so many equations passing through the same point. बिकॉज आप थोड़ा सा पहले जब आप स्टार्ट की क्लासेस में थे, क्लास 6 में आए थे, तो आपने कोलिनियर, कॉन्करेंट, इस तरह के आपने वर्ड सुने थे. तो वो वर्ड्स इसीलिए हैं बिकॉज आप सीधे सीधे एक थ्योरी देंगे कि बिकॉज वी कैन ड्रा इन फाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स passing through the same point. That's why for the different line we have the different equations, so we have the so many answers, but here you have to give only 2 answers. Next is question number 3. I want to discuss every questions here, not completely. जहाँ पे मुझे जरूरत लगेगी मैं उसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा. जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं सिर्फ हिंट से काम हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, और जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये तो आपको आना ही चाहिए तो फिर मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा. प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो स्लो है, मैं हर एक छोटी छोटी बात कवर कर रहा हूँ,
तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपका कोर्स स्लो होगा, आपका कोर्स बिल्कुल स्लो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, बहुत सफिशिएंट नहीं, इनफैक्ट सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है। आप स्कूल में जाते थे तो रेनी डे होता था, अभी आपका कोई रेनी डे नहीं है। एक्टिविटीज़ होती थी, ऐसे राइटिंग, आर्ट, बहुत तरह के गेम कंपटीशन होते थे, सब कैंसिल है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम बहुत स्लो चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे न्यूली एडमिटेड हैं जो अभी शुरू में आए हैं, तो प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस मैसेज के रिगार्डिंग जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसको माइंड में रखूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कि इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें अगर कोई एड्रेस गिवन है ना, जैसे सबसे पहले इसमें एक एड्रेस गिवन है कि 3,4, तो जैसे ही 3,4 आपको मिला, आपको ये एजम्पशन अपने माइंड में सेट करना है कि x की जो वैल्यू है दैट इज 3 एंड फॉर y द वैल्यू इज 4 एंड आफ्टर दैट स्टार्ट थिंकिंग। इसने बोला ये कोई पॉइंट है, ग्राफ पे है, ठीक है ग्राफ पे कहीं पे। आगे क्वेश्चन आप लोग ड्रॉ करना सीखिए। अगर क्वेश्चन आप ड्रॉ करना सीखेंगे तो आप कंक्लूड करेंगे कि मुझे करना क्या है, आप डिसाइड कर पाएंगे कि what are the important steps that are required to solve this questions। एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन इज व्हाट कि 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या हुआ इसमें, आपको सिर्फ a की वैल्यू पता करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सारी बातें गिवन है इसमें, क्योंकि x गिवन है, y गिवन है, तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू को पुट कर देना है। कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू को आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, दिस विल बी 3 है, 7 है। y की जगह पे क्या पुट करेंगे, आप 4 पुट करेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। तो फाइनली आप a को एक तरफ करके आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे, बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा। नहीं आएगा तो जरूर करूँगा, ये तो मेरी ड्यूटी है, हर टीचर की ड्यूटी है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें दिख रहा है सर। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, एंड दैट इज टैक्सी फेयर, अबाउट द टैक्सी फेयर। कैसे है क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज अबाउट द टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर समझते हो, जब आप कोई भी व्हीकल बुक करते हो, ठीक है, कहीं जाने के लिए, एक उसका मिनिमम चार्ज होता है कि बुक कर लिया तो इतना तो लगना ही है, आगे दूरी के हिसाब से जितना दूर जाओगे उतना और देना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन से, आप इसको आराम से पढ़िएगा, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग तो एक ही बात को बार बार पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन ऑलरेडी याद रहते हैं, तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। सो द क्वेश्चन सेज कि कोई टैक्सी है जिसका फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो फिक्स है, कितना है, 8 रुपीज़ है। कितना है, 8 रुपीज़ है। और उसके बाद आप जितना दूर जाएंगे हर किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। क्या कंडीशन है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इफ यू गो ओनली 1 किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट का मतलब उसके बाद अगर आप ट्रेवल करते हो तो पर किलोमीटर आपको 5 और देना पड़ेगा। आगे क्या है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर। इन्होंने ये आपको बोला है कि जो डिस्टेंस है टोटल, आपको क्या एज्यूम करना है, आपको एज्यूम करना है x किलोमीटर। लेट द टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर। इसके बाद एक कंडीशन है कि फर्स्ट किलोमीटर, चलो मान लेते हैं कि ये इतना 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो तो फिक्स है, ठीक है।
और उसके बाद आप जितना ट्रेवल करोगे उसके लिए 5 देना है। तो पहले तो ये सोचो, ये जो मैंने x लिखा है, x इज फॉर द होल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस इज x। अगर आप 1 को माइनस कर दोगे तो यहां पे क्या बचेगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बचेगी दैट विल बी व्हाट, x माइनस 1 किलोमीटर। दिस इज 1 किलोमीटर क्योंकि इसका अलग हिसाब है 8 रुपए, और दिस इज भाई टोटल 1 x है, तो x में से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। मैंने दोनों बातें लिखी, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना रहा हूं। मैं 2 डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बना रहा हूं, क्योंकि दोनों का जो फेयर है, जो किराए का रेट है वो डिफरेंट है। ठीक है, लास्ट में एक बात और कही गई है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन और ये बताया गया है कि जो टोटल फेयर है वो क्या है, वो y रुपीज है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम बात करेंगे फेयर की। हम जो सेकंड इक्वेशन बना रहे हैं किसको, हम चलो कैलकुलेट करते हैं फेयर को। मैं यहां पे लिख रहा हूं साफ साफ टोटल फेयर। फेयर समझते हो ना, कैरियज फेयर, किराया भाड़ा, जो भी कह लो, टोटल फेयर कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तुमको 8 रुपीज तो देने ही देने, चाहे थोड़ा सा ही जाओ। ये क्या है, ये 8 रुपीज है, मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूं। इसके बाद से ये जो है इसका रेट क्या लग रहा है, इसका 5 का रेट लग रहा है। मैं कह रहा हूं अगर इसके बाद तुम 5 जा रहे हो तो 5 × 5 करना पड़ेगा। तो 1 के बाद अगर 4 किलोमीटर जा रहे हो तो 4 × 5 करना पड़ेगा। तो जितना भी किलोमीटर तुम जा रहे हो उसके लिए तुम्हें कौन सा रेट देना पड़ेगा, 5 का रेट देना पड़ेगा। तो टोटल हमको किराया कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ व्हाट, 5। तो ये आप कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल फेयर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन एक बात आपसे कही है, क्या कही है कि जो टोटल फेयर है आपको उसको क्या लेना है, आपको y लेना है। तो ये टोटल फेयर को मैं इरेज करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, बिकॉज क्वेश्चन ने रिकमेंड किया है कि आप ऐसा करिए। अब इसको आप तुम मल्टीप्लाई करके 5x - 5 करके छोटा करके आप आंसर ले आओगे। अगर फर्दर आपको डिफिकल्टी आएगी तो आप मुझे टेक्स्ट करके, मैसेज करके ग्रुप में बताओगे। ठीक है, किसी विशेष बात के लिए आप मुझे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं अगर ऐसी कोई बात है जो ग्रुप में करने लायक नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।